हाय एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन विथ संकेत, जो कि एमटेक के स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं. अनअकैडमी के प्लस के मेंबर रह चुके हैं. करेंट टाइम पे एमटेक कर रहे हैं. आईआईटी गांधीनगर से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं. संकेत ने लास्ट मंथ में एग्ज़ाम दिया था आरसीएफएल का. इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है. रिटन एग्ज़ाम इनका क्वालिफाई हुआ है. अब इनका इंटरव्यू लगा हुआ है 4 अक्टूबर को, राइट संकेत? 4 अक्टूबर को. 4 अक्टूबर को इंटरव्यू है, तो उसके लिए थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे. उसके रिगार्डिंग ये अपना सेशन लगा हुआ है, तो सभी लोग सुनेंगे, चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों को भी इंटरव्यू देना है. फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उसको भी इंटरव्यू देना है. संकेत से हम लोग पूछेंगे गेट की प्रिपरेशन भी कैसे करी थी, इस पर भी हम लोग पूछेंगे, और इंटरव्यू कैसे देना है उस पर भी कुछ मैं आप लोगों को हाईलाइट्स प्रोवाइड करूंगा. तो संकेत, ओवर टू यू. थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ करो सभी लोगों को. Okay. So little bit tell about yourself. Okay. So my name is Sanket Anil Pobre. So I am from Sangli State, Maharashtra. So I am complete my BTech in 2023 with Padma Vasantdada Patil Institute of Technology, Putgaon, and my CPI is 8.51. After that, I have also 1 year experience in plastic industry. After that, I take admission in IIT Gandhinagar. So I am now second year student of the MTech Chemical Engineering, and my MTech thesis is the shape memory polymer planes. Means we will just change our polymer shapes, and we will just check what is their recovery. After that, also in my BTech project is the design of absorption tower with pin arrangements, and I also mention here. So I have one this project is patented, and I have also patent of published patents, sir. So this is one of my achievements. Oh, So very nice, that's all. very nice. Great. In RCFL interview, okay, so how many candidates are shortlisted for interview? Okay, so shortlisted means 1:7 ratio. There is near equal to 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं. So near equal to 350 लोगों को उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है. Okay, 350. Yes. How many vacancies are in? 51 vacancies, right? Yes. So 51 vacancies. So this is the totally CBT plus interview based. Right? Yes, exactly. Non-gate, right? Non-gate exams. Yes, very nice. So this is the one of the opportunity for those students who are preparing for gate. Next year they can expect कि RCFL अगली बार भी निकाले और आप लोग इंटरव्यू वगैरह दो. तो इसमें इस पर्टिकुलर सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा अलग हटके है. ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं रहेगा, बस डिस्कशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू रहेगा कि संकेत को भी इंटरव्यू देना है, उसका बेनिफिट संकेत को मिले. तो संकेत, टेल मी अबाउट योर 4 फेवरेट सब्जेक्ट. कौन कौन से आप देने वाले हैं? So mass transfer, heat transfer, fluid mechanics, and CFA. Mass transfer, heat transfer, fluid mechanics. Okay. Fluid mechanics. Okay, these are the 3 subject, and 4th subject is CRE, chemical reaction engineering. Yeah. So we can start with mass transfer operation, right? Yes, sir. No problems. Okay. So what is the mass transfer operation? Tell me about the mass transfer operation क्या है, और what is the main driving force for mass transfer operation and types of mass transfer operation? Okay. So mass transfer is the transfer of mass or moles from one particular location to the another particular location in a single phase or in a different phase due to the concentration driving force. Okay. So means their main driving force is the concentration driving force. Okay. So there is also, we will use also other driving force also, just like partial pressures and mole fractions also. So just like chemical potential. And the different type of mass operations, just like we will say distillation, absorption towers, extractions. These are the main mass transfer operations we will mostly see in the industry. Yes.
Okay, so what is the difference between driving force concentration difference and chemical potential difference? ओके सो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर सभी सभी प्रकार के ड्राइविंग फोर्स आ जाएंगे जस्ट लाइक हम केमिकल चेंजेस ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं और फिजिकल चेंजेस ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं जस्ट लाइक टेम्परेचर चेंजेस दिस इज द फिजिकल चेंजेस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स सो एक केमिकल पोटेंशियल के अंदर आ सकते हैं एंड इन द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है जहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो मास ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन सो ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स आ जाता है ओके, तो अभी आपने नाम लिया कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन का एग्जांपल जो आपने बताया डिस्टिलेशन, राइट? Yes. सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स इन डिस्टिलेशन? Okay, so relative volatility is the main concept, and the driving force is volatility difference. So volatility difference के हिसाब से driving force हम distillations में use करते हैं. व्हाट इज द वॉलेटिलिटी डिफरेंस? Volatility means we will just separate the high volatile means more volatile components from the mixture of low and high volatile components. So these difference because of this difference we will separate the two liquids. So just like I am interested to say because of the relative volatility जो कि relative volatility difference नहीं हो सकता. So I just mentioned the relative volatility. यस, सो रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिफरेंस, रिलेटिव वॉलेटिलिटी आपने क्या बताया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिफरेंस? वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है? ये किस में डिफरेंस है? Okay, so relative volatility just shows कि means concentration of more volatile to the low volatile in the vapor phase to the concentration of more volatile to the low volatile in the liquid phase. So ये मेरा relative volatility show कर रहा है. So depend on this we will separate the liquids from in distillation. यस, वेरी नाइस। अभी आपने बताया कि मास ट्रांसफर के लिए मेन ड्राइविंग फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, Yes. और इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस यू आर सेइंग द ड्राइविंग फोर्स इज रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिफरेंस। Yes. Yes. So how we can connect each other? Actually, yes, sir. Just like I am saying, relative volatility, it is the ratio of concentration of high molecular volatility to low molecular volatility. So indirectly, they are just coming to the means they are in shortly mention the concentration relations, and depend on this we will just go into their partial pressures. Depend on the partial pressure of low volatile to the high volatile. Depend on this we will try to calculate the relative volatility. ओके ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा रिकनेक्ट कर देता हूँ आपके Okay. लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। Yes. आपने जैसे बताया मास ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, राइट? Yes. तो जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी है वो भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में ही रेशियो बताता है, गैस फेज टू लिक्विड फेज मोर वोलेटाइल, कि मोर वोलेटाइल अपना गैस फेज में कितना है और लिक्विड फेज में कितना है। गैस फेज में जितना ज़्यादा होगा रिलेटिव वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि आपका ईज ऑफ मास ट्रांसफर होगा, राइट? सिमिलरली आपका रिलेटिव वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा, ईज ऑफ मास ट्रांसफर, यानी कि ड्राइविंग फोर्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो वो भी कंपोजिशन में डिफरेंस ही बता रहा है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगी, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वही डिफरेंस क्या है मास ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स। बोथ आर रिलेटेड। वेरी नाइस। सो इन मास ट्रांसफर ऑपरेशन मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ डिस्टिलेशन में ही। आप TXY डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू? Yes. 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 Yes, correct. Okay, so in okay, TV and TA is here, right? Very nice. So in that diagram, Okay. this diagram is based on particular pressure or different pressure? इसमें constant क्या है? Yes. Yes. Pressure. This is the depend on the particular pressures. Yes. Yes, very nice. So if I am increasing the pressure,
हाउ दिस वीएलई कर्व विल चेंज, कैन यू प्लीज ड्रॉ। इन केस में प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो अपना वीएलई डायग्राम कैसे चेंज होगा, क्या इसको yes आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। yes yes yes, yes. Correct. So in this plot I am just mentioned, so pressure increase हो रहा है तो प्लॉट थोड़ा अपर होके जितना मेरा विड्थ था वो उसका ब्रॉड इतना नहीं होगा, वो कम ब्रॉड होगा क्योंकि उसका जो जो कर्व है वो मतलब थोड़ा नियर स्लिम हो जाएगा। यस यस यस। सो टाई लाइन की जो लेंथ है इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी, टाई लाइन की लेंथ डिक्रीज करेगी। और टाई लाइन क्या शो करता है। हाँ मीन्स टाई लाइन शो हो रहा है कि suppose just I'm interested to explain with example. Suppose I have the 50% of the liquid A volatile. Okay, means how volatile is the 50% in the liquid component. So tie line जब मैं उसको बॉईल कर रहा हूँ तो एट बॉइलिंग टेम्परेचर में मेरा जब लिक्विड टू वेपर हो जाएगा सो कितना परसेंटेज मेरा वेपर का कंपोनेंट मिल सकता है। सो उस हिसाब से मुझे टाई लाइन शो होती है। जस्ट लाइक 50% जब मैं सैचुरेशन ऑफ द ड्यू पॉइंट में जाऊंगा तो मेरा ऑब्वियसली कंटेंट ऑफ द वाई कंपोनेंट मोर हो जाएगा। सो दिस रिलेशन वी विल शो द टाई लाइन एक्स एंड वाई रिलेशन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूँ। टाई लाइन जस्ट रिप्रेजेंट ये करता है एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हाउ मच मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज and how much more volatile component in the liquid phase at the condition of equilibrium separation of particular temperature। एक particular temperature particular pressure पर maximum separation कितना हो सकता है, right? लिक्विड फेज में अपना मोर वोलेटाइल कितना है और गैस फेज में कितना मोर वोलेटाइल सेपरेट हुआ है। दिस द एक्चुअली मीनिंग ऑफ टाई लाइन। वेरी नाइस। सो दिस द ऑल अबाउट द डिस्टिलेशन। अभी इसमें डिस्टिलेशन में अच्छा एक चीज़ जरा मेरे को बताओ, स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग कब यूज करते हैं, उसका फंडामेंटल सिग्निफिकेंस क्या है। सो स्टीम डिस्टिलेशन हम तभी यूज करेंगे जब मेरा जो कंपोनेंट्स है सो दिस इज द टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट है। सपोज हाँ, सो उसमें क्या करेंगे हम वी विल यूज द स्टीम्स। सो दैट्स रीजन माय बॉइलिंग पॉइंट एंड देयर इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो कि जो स्टीम है वो इमिसिबल इन द माय मिक्सचर्स। सो उसी टाइम में हम which component more volatile components, immiscible with more volatile components, so उसमें होना चाहिए। तो उसकी वजह से हम स्टीम को यूज स्टीम डिस्टिलेशन में मोस्टली स्टीम मतलब वही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। वेरी नाइस। सो ओवरऑल मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है यस वो आपका उसको कैसे डिफाइन करोगे। ओके, सो जो भी ओवरऑल टेम्परेचर का ओवरऑल मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है द आफ्टर स्टीम एडिंग देयर टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस जस्ट लाइक पर्पस ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन यस दिस इज द मेन पर्पस कि स्टीम डिस्टिलेशन से आप सिस्टम को उसके लो बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉईल कर सकते हो, बॉईल कर सकते हैं। सो उसमें क्या यस तो means because of the we use the pure water solutions, that's the reason the temperature between the A and B just like adding the third component, so total pressure is partial pressure of A plus partial pressure of B, and because of these pure components then my pressure will be decreases, means the vapor pressure what I want to vapor total pressure, so this will be decreases, so that's reason total pressure increases, so ultimately overall boiling point will decrease of individual component। Okay, reuse बोल दिया। Okay, yes, great। So this is the all about mass transfer operation and थोड़ा और भी पढ़ लेना, एब्जॉर्प्शन कॉलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ओके, और हल्का सा ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पढ़ लेना। कूलिंग टावर में रेंज क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इन द कूलिंग टावर।
ओके, सो कूलिंग टावर में जो एग्जैक्ट रेंज रहती है वो इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर रहता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर रेंज चाहिए होते हैं जो कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक हमारा पर्पज रहता है। तो डिक्रीज द टेम्परेचर टिल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सो अप्रोच रेंज हम बोल सकते हैं आउटलेट टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। व्हाट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? So, dew point temperature is the temperature at which we measure the using the thermometers. At that time, the my air is flowing, and the wetted cloths is around the my bulb of the thermometers. This, and after some time, these unsaturated airs will be saturated air will be formed, and after some time, the unsaturated one layer outside the bubble outside the bulb is formed. So these temperatures measure the thermometer. This is the dew point. Sorry, my mistake. This is the wet bulb temperatures, and my aim is the wet bulb temperature. So I just Yes, मतलब yes, no problem, no problem. Take your वेट time, बल्ब take your टेम्परेचर time, बोलना, यस take your time. एग्जैक्टली मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर बोलना था, तो बाय मिस्टेक मैंने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोले, तो एग्जैक्टली माय रेंज जो रहती है वो वेट बल्ब टेम्परेचर तक रहनी चाहिए। सो जस्ट दिस इज द टेक पॉज, 1 मिनट का वेट कर लो, ओके। कूल होके आराम से सोच लो कि क्या पूछा गया है और क्या हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? यस ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे तो टेक पॉज एटलीस्ट 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड का पॉज लो, कूल हो जाओ, देन आपको क्या करना है? रिप्लाई करना। राइट, ऐसा होता है इन जनरल, यस ऐसा हो जाता है कि कभी कभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, टेक पॉज। अब फिर से मेरे को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिफाइन करो अगेन। okay. So dew point temperature means temperature at the saturation conditions. We measure the temperature at the saturation conditions, means the at that point my phase will be changes. Okay, so this is my dew point temperatures, and I am interested to the talking related to wet bulb temperature नो because नीड, नो नीड, नो नीड, आई एम okay, आस्किंग ओनली ड्यू पॉइंट dew टेम्परेचर। point, okay, okay, sir. So actually you can also say like that कि it is the temperature at which Okay, first first liquid will be form first vapor transfer to, condensed into the condense into into the liquid. Yes, yes. ठीक है, तो you can say like that। Okay. और at the same time if anyone asks the bubble point temperature, यानी कि first bubble of vapor is form, Yes, exactly. Yes. लिक्विड से बबल फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं बबल पॉइंट टेम्परेचर, और गैस से फर्स्ट कंडेंसेशन के साथ लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म हो तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, राइट। और स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, Yes, yes. यहाँ पे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट इक्वलाइज हो जाए, Yes, yes. राइट। तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज वेट। Right. ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो हाँ। इससे आपका पूछा जाएगा Yes, इन द yes. कूलिंग टावर। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? कूलिंग टावर में, Cooling tower. राइट। तो दिस द ऑल अबाउट द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। Yes. So your next subject is Heat transfer. heat transfer operation, right? Yes. So tell me the modes of heat transfer operation. Okay. So there is mostly three modes of heat transfer operations: is conduction, convection, and radiation. Okay. So Tell me the governing equation of radiation. okay. So means radiation is the emissive power of the black body is directly proportional to the fourth power of the temperature. So Okay. Name of this governing equation? Who proposed this? just give me the second for thinking. Yeah, sure. Stephen, actually, I It's just the Stephen law. yes, Stephen law. Stephen, yes, Stephen. Yes. Okay. So this is the governing equation for radiation. Yes. I am also interested in governing equation for conduction. Okay, so governing equation of conduction means the heat flux is the of a particular direction is directly proportional to the temperature gradient of the same direction. Name of this equation? Fourier's Fourier's law or Fourier equation? sorry, Fourier equation. Fourier equation. एक बार फिर से सोच लो।
Yes, sir. For your equations. So correct it. It's a Fourier's law, not For Fourier this. equation. Fourier's law. Okay. Okay, sir. For this. So this is the Fourier's law. So in Fourier's law, Okay. as you know, the uh, a temperature decreases toward the heat transfer flow. Temperature continuously अपना decrease करेगा. There is some gradient, right? Yes. So this, if I am calculating this gradient, Okay. different metals like Huh. one we have okay, a higher thermal conductivity metal, Okay. or other is lower thermal conductivity metal. Okay, we have two different kind of metal. So in which gradient will be more? Okay. जिसका लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होगा उसका ग्रेडियंट मोर रहेगा. Yes. तो जिस मेटल्स में ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उसमें उसका- ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ऐसा आप बोल रहे हैं. जस्ट सेकंड. एट अ स्टेडी स्टेट कंडीशन पर आपको बताना है. यस यस यस. और दोनों मेटल आपके सीरीज में लगे हुए हैं. दोनों मेटल आपके सीरीज में लगे हुए हैं. अब आपको टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखानी है. हाँ. ओके. सो जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा सर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए सर. यस यस. और जिसका स्लोप कम रहना चाहिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा रहना चाहिए. जैसे मैंने मेंशन किया है. यस यस करेक्ट. सो थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसमें स्लोप उतना ही कम होगा, राइट? कम रहेगा. यस. है ना? So- तो यस लगभग फ्लैट लाइन टाइप की जाएगी. Flat line, yes, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट टाइप का कोई भी रहेगा मटेरियल, Yes. ओके, एज्यूम कर लो, तो उसमें फ्लैट लाइन चली जाएगी, लाइक लम्प्ड हीट कैपेसिटी मॉडल टाइप का सिस्टम यस. हो जाएगा, राइट? So this is the all about the temperature profile. Yes. Tell me the nature of this profile when you are, this is your flat plate, right? Yes. If I am changing this geometry in spherical geometry, if you am talking about the spherical geometry, then temperature profile looking like The temperature profile is looking like hyperbolic, sir. hyperbolic. Yes, sir. Can you please draw कर सकते हैं क्या? So I am just trying to it just like hyperbolic. ओके, एक बार और चेक कर लेना. Okay. So next question is related to heat exchanger. Okay. Have you studied heat exchanger? Yes. Your tech project was? Design of absorption tower with pin arrangements. Okay.
So all right. So in the heat exchanger, as you know, ki you have studied different kind of process like phase change process. So Okay. can you please draw the temperature profile for counter current phase change process? Okay. Means for phase change for means condensation या evaporations. We have two Yes, very options. nice. Both condensation and evaporation both. Okay, so first is the condensation, And second second one is is okay. आई मेंशन हियर मींस जो हॉट फ्लूइड का मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है वो कंडेंसेशन हो रहा है तो थोड़ा सा अपने राइट में शिफ्ट करिए इसको, हल्का सा अपने राइट में, अपने राइट में। ओके हाँ हाँ, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा एक का फ्लैट जाएगा, जो सेकंड वाला आपने बनाया है वो दोनों आपने वेरी करवा दिए हैं, दोनों वेरी नहीं करेंगे। व्हिच वन सर? इसमें आई थिंक मुझे हल्का सा दिख रहा है कि अच्छा ये कांस्टेंट है बॉटम वाला, ठीक है, ऑल राइट, यस 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 करेक्ट यस करेक्ट, ओके, एब्सोल्युटली perfect. So this is all about the temperature profile. यस Tell me the role of baffles in the heat exchanger. ओके Roles of baffles. okay first thing is the baffles is used for the support to my tubes Okay. and baffles is also helps to the flow of the shells means they are the decreasing the area that's reason increasing the my velocity of the fluids so my velocity of the fluids increases so he Velocity turbulence of fluid increases in the tube side or cell side? no in the shell side sir in the shell side so Okay. in the shell side increases so velocity increases my turbulence increases so turbulence increases my heat transfer increases. Very nice, great. So what is the expected ratio of Whipple spacing? Uh, sorry, sir. I can't recall now, but I have some thinking related to is Whipple related to spacing. Tell me about the Whipple spacing. What is the Whipple spacing? Whipple spacing is the distance between two Whipples. Okay. Sorry, हाँ. So Okay. जो वो उन दोनों का बीच में जो स्पेस आ रहा है वो मेरा इज नोन एज द बेफल स्पेसिंग। कितना बेफल स्पेसिंग रखते हैं इन जनरल डिजाइनिंग पर्पज से? सर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. ओके, तो व्हाट इज द ट्यूब पिच? Okay, tube pitch means the difference between the center of two tubes. ओके, So this is my tube pitch. कितना रखते हैं ट्यूब पिच, कितना रखते हैं, एनी आइडिया? Means I have also no idea related to ओके, that नो design. प्रॉब्लम। तो ट्यूब पिच कितने टाइप की होती है? मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होने वाले कि एक जो कि स्क्वायर ट्यूब पिच है और ट्रायंगुलर कौन सी यूज करते हैं और कौन सी बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा गिवन डायमीटर में? ओके, सो ट्रायंगुलर पिच गिवन डाया में ज्यादा अपने को शो मतलब ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू स्क्वायर पिच. ओके, तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं, अलग अलग डिसएडवांटेज हैं, एक बार देख लेना इसको। ओके ओके, दोनों के पर्पज अलग हैं, दोनों की ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज योर CRE राइट और FM? FM, ओके। So tell me the assumptions of the Bernoulli principle. Okay, so Bernoulli principle assumption is the first is the steady state, another is the incompressible, another is the invisible,
and we will another is the just the Bernoulli's equation we will apply in the along the streamline. Okay, Tadu, what is the meaning of incompressible fluid? So incompressible fluids means as a formulatical we will show just like del dot v is equal to 0. So जो भी मेरा incompressible fluid में जब we just apply the some forces then मेरा fluid को भी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. So yes. So very nice, you are connecting. okay. So all right. So what is the role of pump? Why we are using pump and what is the main principle of pump? Working principle क्या है pump का? Okay. So first thing is pump used for the transfer of the liquid. So from one location to the another location. That's the reason we use the pumps. So pump ka working है कि first they will suction from the our tanks and they will discharge to the another locations. So this is the means main fundamental of the pump. Which energy going to transfer from this to this? Okay, so first is the in the pump mechanical energy going to the fluid energy. So this concept we will use here. Okay. All right. So types of pump. Tell me the types of pump. Okay, so there is mostly means positive displacement and non-positive means centrifugal pump. Non-positive displacement there is category in the centrifugal pump, and in the positive displacements we will say reciprocating pumps, piston pump, stroke pump, diaphragm pump. This is in the positive displacement. Okay. All right. All right. Very nice. So this is all about the your technical subject. Now tell me about the little bit your experience. You told me ना कि 1 year का experience है आपके पास. In the plastic industry, yes. Yes. So क्या वर्क था वहाँ पे आपका? किस इंडस्ट्री में था आपका? Yes, actually जो मेरी इंडस्ट्री अग्रणी प्लास्टिक इंडस्ट्री, दिस इज द एक्चुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उनका जो प्रोडक्शन था वो ब्लैक मस्टर्ड बेस्ड था. जस्ट लाइक वी विल गिव द कलर टू द पॉलीमर्स. तो उसका एक हाँ उसका प्रोसेस रहता है ब्लैक मस्टर्ड बेस्ड, वो प्रोडक्शन की कंपनी. So what is the main raw material of this? हाँ मेन रॉ मटेरियल इज द पॉलीइथिलीन एंड कार्बन ब्लैक. दिस इज द रॉ मटेरियल. What is the formula of polyethylene? CH2 means actually polyethylene, it is the long chain. Yes. So we will just means C2H related to the carbon of the second, and this is the H long chain. So which type of the reaction you are observing okay. from this? Actually this is in this reaction we will there is no any reaction happen in the between the this is the just like we will say जैसे मास ऑपरेशन हो रहा है वैसे ही वहां पे फिजिकल ऑपरेशंस हो रहा है, जो कि पॉलीमर को मेल्ट करके उसमें कार्बन ब्लैक डाल के उसको ब्लैक कलर बना रहा है. ओके. सो हाँ उसमें से एनर्जी हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेल्ट बाय पॉलीमर. वर्क क्या था वहाँ पे आपका? आपका क्या काम था वहाँ पे? ओके उसमें फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था तब जस्ट लाइक ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ज्वाइन किया था. आफ्टर 6 months आई एम वर्किंग इन द QCA मींस लैब में, जो कि उनको नया नया प्रोडक्ट बनाना था, तो आई वर्क इन द QCA. ओके वेरी नाइस. सो नाउ वी आर ओके. सो ऑल राइट. सो व्हाट इज द योर फ्यूचर प्लान? यस सर. करंटली यू आर डूइंग MTech राइट? यस सर. सो व्हाट इज द योर फ्यूचर प्लान? आपका फ्यूचर गोल क्या है? किस में आप जाना चाहेंगे? Okay, so my just like we will say my smart term goal is the PSU jobs. Okay. Because this is because of this I am coming to the gate preparation and this. So first target मेरा PSU jobs है, and the future plan means first starting from the learning the industrial knowledge, and so this is the first priority as per my thinking, जो कि अभी तक मैंने theoretical तो पढ़ लिया. So how I exactly use in the industry, so उसके लिए मुझे as a chemical industry में काम करना बहुत अच्छा रहेगा. So आपने बीटेक के बाद डायरेक्ट इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन की? So I already joined the industry, but this is the related to the plastic industry. Okay. And because of I not coming to the chemical industry, this time is the COVID time.
So because of the our safety, that's the reason this company is near to my home. So that's the reason I just joined this. All right, all right, Yes. all right. So there is a one case. सपोज कर लीजिए कि आपने मैं आपको इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, Yes. हाइपोथेटिकल केस, और आप एमटेक कर रहे हैं और आपको पैकेज यहाँ से ज़्यादा मिल जाता है, Okay. राइट, किसी दूसरे सेक्टर में, नॉन टेक्निकल में सपोज कर लो आपको पैकेज ज़्यादा मिल गया, किसी भी सेक्टर में आपको पैकेज ज़्यादा मिल जाता है, तो आप किसको चूज करना चाहेंगे? सर फर्स्ट थिंग इज द मैं केमिकल इंडस्ट्री चूज करने चाहूँगा, जहाँ के अपना यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चूज करना चाहूँगा। उसके पीछे दो रीजंस है। फर्स्ट थिंग इज द मुझे ऐसा लगता है मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया है, सो आई थिंक आई एम अ गुड केमिकल इंजीनियर। And why fertilizer industry? Sir, my father is a farmer, so I have a little bit idea about how farmer actually use the fertilizers. So जो कि farmers use करे fertilizers और जो कंपनी बना रहे उसका जो डिफरेंस है वो लगभग मुझे पता हो जाएगा। So that's the reason I am interested in the working in the fertilizer industry. So अभी करंट टाइम पे आरसीएफएल में कौन से न्यू न्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं? ओके, एक्चुअली वहाँ पे टोटल 7 न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो उसमें से दो जो कि मुझे बहुत मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन। सो फर्स्ट इज इन द जो कि ग्रीन एनर्जी, जो सोलर पैनल्स एंड रिलेटेड टू दिस, एंड अनदर इज द कोल गैसिफिकेशन। दिस टू प्रोजेक्ट्स इज नाउ मींस आई ऑल राइट, हु इज द चेयरमैन ऑफ आरसीएफएल करंट? Sorry, I can't recall. I read this, but now I can't. होम पेज पे जाके एक बार चेक कर लेना। Yes, sir, definitely. चलो, ऑल राइट, बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। ओके सर, एक क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने टाइम दे दिया। सो मुझे और किस पॉइंट में फोकस होना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, जो कि मुझे आप एक ओवरऑल। जो टेक्निकल इज गुड, टेक्निकल अच्छा है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट जो चीजें कर रहे हो उसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है। ओके, यस, ओके, थोड़ा सा कूल होके आराम से चीज़ों को सुन के और थोड़ा सा आराम से उसको पीसफुली आंसर देने का एक बार ट्राई कर सकते हो ना। और जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताना है, इधर उधर का ज़्यादा नहीं बताना है, शॉर्ट में ब्रीफ, क्योंकि इंटरव्यू जो भी ले रहे हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है। आपको हर कोई आज की दुनिया में जल्दी में 20 मिनट का मैक्स इंटरव्यू टाइम, मैक्स इंटरव्यू होता है। ओके, तो पीएसयू उसके इंटरव्यू बहुत शॉर्ट में जाते हैं। ओके, 2-4 मिनट आपसे इंट्रोडक्शन में चला जाता है और 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वही आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं मेनली। तो ट्राई करना कि 2-3 आप कोई भी यूपीएससी के जो भी इंटरव्यू हुए हैं उनको देख लेना एक बार। ओके, यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, यस, तो उनके कुछ आप देख लेना कि वो लोग कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे को मैसेज कर देना, मैं एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा, यस, वो आप देख लेना कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। बाकी टेक्निकल इज गुड, ठीक है, टेक्निकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक क्वेश्चन था, जस्ट लाइक कि जैसे आपने वहां पे मुझे कूलिंग टावर का क्वेश्चन पूछा, सो वहां पे मुझे बोलना था वेट बल्ब टेम्परेचर, बट माय माइंड जस्ट से द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वहां पे मेरी जीभ तो फिसल गई। सो उस पॉइंट को फिर से मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो मतलब वो सही रहेगा कि आई एम सॉरी सर, बाय मिस्टेक आई जस्ट से द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, ये तो जस्ट लर्निंग का फेज है, कोई इशू नहीं। ओके, तो उसको ऐसी हो जाती है, सपोज कर लो ऐसी कुछ गलती हो गई तो इनकेस इंस्टेंट आपने पकड़ लिया तो आप सॉरी बोल दो, ठीक है, फिर 1 मिनट का पॉज ले लो, हल्का सा, 1 मिनट नहीं 20 सेकंड का पॉज ले लो, फिर आप उसको एक बार फिर से रिकैप। ओके, सो क्या हुआ कि उस क्वेश्चन की वजह से जो आने वाले 2 क्वेश्चन है ना, उसमें ऊपर मेरे ऊपर प्रेशर आ गया बिकॉज ऑफ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। व्हाट इज द डेफिनेशन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? सो वो पता है बिकॉज फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंस, लेकिन उसके वजह से वो रिकॉल नहीं हो रहा है। यस, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? जब भी आपको आंसर देना है तो आंसर थोड़ा सा हल्का सा 5 सेकंड का पॉज लेके दो। ओके, उसमें इतना सोच लो कि मैं जो भी आंसर बोल रहा हूँ उसकी कोई वो एक इजी वे हो सकता है क्या सोचने का, है ना। उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, वहां पे कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो जो सामने वाला है वो भी फंस जाएगा, वो उसको भी क्लियरिटी नहीं होगी और आप क्या बोल रहे हो उसको भी क्लियरिटी नहीं होगी। तो जितना इजी रखोगे, जितना आसान रखोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। आप एग्जाम कब, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, सपोज कर लो कि आपके पास एक कॉपी आई चेक करने के लिए, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1,
ठीक है, तो आपके लिए आसान है उसको देखना। अब पता चला इतना छोटा सा उसने क्वेश्चन लिख दिया है, आप फिर ढूंढ रहे हो ये कौन सा इसने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो। तो यस जब सर। क्लियरिटी आपकी रहती है ना पहले से, तो जो ले रहा है ना वो इरिटेट नहीं होता है, वो खुश होता है। तो हमेशा उसको देखना है कि वो प्रॉब्लम में ना जाए, है ना। अपना आंसर कैसा जाएगा, सही जाएगा गलत जाएगा वो तो जाएगा ही, ठीक है, उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही अलग से, लेकिन इतना ट्राई करो कि कंफ्यूज ना हो कोई भी। नो। पता चला पैनल भी कंफ्यूज हो रहा है और आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना। यस सॉरी बोलना है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सॉरी, यस, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। नहीं करना। यस यस, डेफिनेटली आई एम फॉलो ऑल दिस। सो यस, थैंक वैसे यू, आप थैंक यू वेरी। हाँ जो भी आपसे डिस्कशन हुआ है, मुझे लगता है कि आपको टेक्निकल में ओके। बीट नहीं किया जा सकता है, टेक्निकल इज गुड। बस हल्का सा और इंडस्ट्री में जो आपने काम किया है उसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना ना। पॉलीमर से जो भी आपने काम किया है उसको थोड़ा सा और बढ़िया इम्पैक्टफुल बनाना, ठीक है। ओके, दैट्स इतना मत कवर कर देना कि रॉ मटेरियल था उसकी जस्ट ब्लैकिंग करके खत्म कर देने थे, नो। तो अच्छा उसको बना। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है कि जो मैं काम कर रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, ओके। है ना। उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि जो मेरा वर्क था वो बहुत यू नो कि इम्पोर्टेंट वर्क था, ओके, और मैं ये चीज़ करता था वहाँ पे, है ना। बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ बड़ा काम आप कर रहे थे। इस टाइप का इंटरेस्टिंग सोचो, आपके पास टाइम है अभी 2-4 दिन यस का, यस तो आप यस। सोचो कि उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि सुनने वाले को भी इंटरेस्ट लगे। ऐसा नहीं नहीं सर सिर्फ हमारा इतना ही काम था, वो आता था और ऐसा करके कर देते, तो यानी कि अब वो इंटरेस्ट ही नहीं उसमें रहेगा, इंटरेस्ट नहीं था। यस यस यस, राइट। तो एग्जैक्टली। उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, ओके, तो ये गुड सारी चीज़ें। सर। ओके ओके सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, जो कि ऑल द मतलब बेस्ट, एक आपने टाइम दे दिया मेरे लिए सर। सो ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली ऑल द आई बेस्ट। वर्क ऑन ऑल यस, दिस पॉइंट्स। वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंटों में आप संकेत हो, है ना। सर आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ बाकी कुछ नहीं है। 4 तारीख को एग्जाम है, तो आपका आशीर्वाद लेके जाओगा सर। डेफिनेटली, ठीक है, एक बार आप एग्जाम दो अच्छे से, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी मच। होपफुली सारी चीज़ें अच्छी हों। थैंक यू डियर, थैंक यू सो ओके मच, ऑल द ओके, बेस्ट। बाय बाय सर।